Hi, friends. Again, we are here for another program with yourselves, live on Sangam Radio. And this is the series that I'm going to be recording on Instagram. Just before that, we've recorded one on Facebook Live and also downloaded on YouTube. And this will also be available on YouTube. So please do stay with us. And we'll be looking at God's name being holy. Hallowed be thy name. So we've done a series on name, and hallowed is the one we're looking at now. What does it mean to hallow God's name and to be holy, finding it holy? कैसे हम खुदा के नाम की जो पाक नाम है, तेरा नाम पाक, जो पाक लफ्ज़ है उसके बारे में देखेंगे. सो आप प्लीज़ मेरे साथ रहें इस प्रोग्राम में. खुदा आपको बरकत दे. Once again this morning, I'm so grateful that you have asked me to be on Sangam Radio. हमारी जो आवाज़ आपको संगम रेडियो के वसीला से पहुंच रही है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं. हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम इसके वसीला से आप तक अपने जो आवाज़ है वो पहुंचा सकते हैं, खुदा के नाम की तमजीद कर सकते हैं. पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी पहली 6 आयत में हम पढ़ते हैं. वी रीड इन फर्स्ट Thessalonians 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 6. We read आज की सुबह, this morning, as we come before the throne of grace and asking for God's help, खुदा के जो काम है उसको समझते हुए, जानते हुए, as we progress our life of prayer in him. It's important that we focus on his holiness, that he is holy God, a God who changes never. His holiness is so important to discuss in the life of a Christian. 1 Thessalonians chapter 5. Now, brothers, about times and dates we do not need to write to you, for we know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all sons of the light and sons of the day. We do not belong to the night or to the darkness. So then let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी पहली 6 आयत में यूं मरकूम है. मगर आए भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और कौमों की बाबत तुमसे कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है. जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह निगहान हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज ना बचेंगे. लेकिन तुम आए भाइयों, तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद हो और दिन के फर्जंद हो. हम ना रात के हैं ना तारीकी के. बस औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें. खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो. My friends, we read in the Lord's Prayer, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. आए अजीजो, हम जो खुदा की सिखाई हुई दुआ है उसमें पढ़ते हैं, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए. आज ये जो लफ्ज पाक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान में बातें करेंगे और समझेंगे कि खुदा हमारे से क्या चाहता है. इससे पहले हमने देखा कि खुदा बाप आसमान पर है. Just before this we saw our Father in heaven, how holy he is, that he is in heaven. There is no impurity in heaven. कोई नापाक चीज आसमान पर नहीं है. पाक चीजें आसमान पर हैं. Only pure things are in heaven. Pure people
are in heaven, that worship God, the triune God, जो तस्लीस वाले खुदा की तारीफ करते और उसकी इबादत करते हैं, वो ही आसमान पर हैं. पाक चीजें, फरिश्ते, angels, pure are in heaven. आसमान पर खुदा की इबादत करते हुए नजर आते हैं. हमने इससे पहले देखा कि खुदा का नाम, just before we saw the name of God, the name of God is holy. खुदा का नाम पाक खुदा है. What is meant by hallowing God's name? इसका क्या मतलब है कि तेरा नाम पाक माना जाए? इससे मतलब हमें क्या मिलता है? What do we see with this, linked with this holiness? What is meant by this? इसका मकसद, इसका मतलब क्या है? To hallow is, we see, is to set apart a thing from the common use. कोई चीज जो पाक है उसको आप अलग कर कर रख देते हैं. That's what it is. It's holy. It's holy temple. The temple, when we focus on that, is something that we put aside as a temple where people come to worship. In the Old Testament, जो पुराने ऐतनामा में लोग जो हैकल थी उसको अलग करके रख दिया जाता था. आज के दिनों में भी हम करते हैं कि ऐसी चीजें जो अलग हो जाती हैं उनको अलग कर दिया जाता है. They are separated from else. They are holy, pure. Hallowed be God's name. खुदा का नाम पाक है. That's why we have separated him, because he is holy. क्योंकि वो पाक खुदा है, इसलिए वो अलग है, क्योंकि वो गुनाह में अपने आप को रख नहीं सकता. He cannot be mingled up with sin. खुदा पाक खुदा है. खुदा का नाम पाक है. We can add nothing to his essential glory. उसके जलाल के अंदर हम कुछ भी हासिल या addition नहीं कर सकते. We cannot add anything. His glory is massive. उसका जलाल बहुत है. उसके जलाल के अंदर हम और कुछ उसको addition नहीं दे सकते. We cannot add anything. His glory is enough for himself. And that is the glory that shines on his people. और यही वो जलाल है जो उसके लोगों पर नजर आता है. He shone his glory on Moses. मूसा पे अपना जलाल उसने जाहिर किया. आसमान का जलाल, खुदा का जलाल, यीशु अल मसीह में वो जलाल. Heavenly glory, God's glory in Jesus we see has come. उसका जलाल हमें नजर आता है. क्यों? क्योंकि वो ही पाक खुदा है. True prayer, we see, seeks only that God's name might be respected. खुदा का नाम, हमारी इज्जत, हमारी जो दुआ है, उसके वसीला से हम ये नतीजा निकालते हैं कि खुदा की इज्जत की जाए, उसके नाम की इज्जत की जाए, उसकी पाकीज़गी की इज्जत की जाए. और ये सारी बातें हम इसके बारे में पुराने अहदनामा में सीखते हैं. When a prince is crowned, there is something added really to his honor. जब एक बादशाह के सर पे ताज रखा जाता है तो उसको इज्जत दी जाती है. उसके नाम के साथ वो इज्जत का तमगा दिया जाता है. खुदा पाक इज्जतदार खुदा है. God is to be respected. Just like that prince who is honored with a medal or a crown, he is to be honored. खुदा का नाम जलाल पाए. जो कोई मेरे अजीजों खुदा के नाम की इज्जत करते हैं उनको खुदा भी इज्जत देगा. My friends, those that honor the name of God, his holiness, he will honor them. He will honor them in their hearts. अपने दिलों के अंदर जो खुदावन के बेटे को रखते हैं, अपने दिलों के अंदर जो यीशु मसीहा को रखते हैं, खुदा उनको भी इज्जत बख्शता है.
इन प्रेयर, दुआ में मेरे अजीजों, ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ दुआ लफ्जी तरीका से करें। अब अक्सर औकात हम देखते हैं कि लोग लफ्जी तरीके से हम इतनी दफ़ा दुआ करते हैं और बातों में हम सिर्फ बातें ही कहना चाहते हैं. There's so many times that we say certain things in prayer and we don't mean anything other than our lips just saying constantly the use of the words. We constantly use those words to impress others. लेकिन दुआ जो है वो दिल से की जाए तो खुदा उस दुआ को इज्जत से देखता है. जब as we pray with our heart, God uses that with respect. खुदा अपनी इज्जत देता है. उसका नाम अव्वल है. He is the one on high. Why do we say hallowed is God's name when we have a high appreciation? That is when we come to say hallowed be thy name. उसका नाम जो पाक है उस वक्त हम लेते हैं जब हमारे दिल के अंदर उसके लिए एक बड़ा रुतबा होता है. उस रुतबे को सामने रखते हुए hallowed God's name when we hallow his day, hallow ye the Sabbath. जब हम जो सब्बत है उसकी जो इज्जत करते हैं तो खुदा के नाम को इज्जत दी जाती है. Our Christian Sabbath, जिस दिन यीशु अल मसीहा मुर्दों में से जी उठा, इतवार के दिन उसका सब्बत जब मनाया जाता है तो उसको हम देखते हैं, खुदा के नाम की ताजीम करते हैं. We worship when he rose again from the dead. We respect that day. We worship him. हमें बताया जाता है कि खुदा के नाम की जो बात है उसके जलाल को सामने रखते हुए हम उस बातों को देख सकते हैं. How do we hallow God's name? हम खुदा के नाम को किस तरह उसको पाक समझते हैं? By obeying him. उसकी वफादारी फरमाबरदारी करते हुए उसको हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए. How does a son more honor his father than by obedience? एक बेटा जो है बाप की जो वफादारी है उसमें रहता हुआ उसको हम देख सकते हैं. I delight to do thy will, oh my God. ज़बूर 40:8 में हम देखते हैं कि मैं तेरी अंदर खुश रहता हूं, तेरे में मैं खुशी महसूस करता हूं. ज़बूर 40:8. Psalm 48. The wise men showed honor to Christ. जो मजूसी आए थे उन्होंने यीशु अल मसीहा को इज्जत बख्शी. Not only by bowing the knee to him, सिर्फ अपने घुटने टेक कर नहीं, but by presenting him with gold and myrrh. मुर और सोना लुबान देकर उसको उन्होंने अपना आप दे दिया, झुक गए. मत्ती की किताब उसका 2 बाब और 11 आयत. In Matthew chapter 2 verse 11 we hallow God's name. पाक खुदा का नाम हम लेते हैं not only by lifting up our eyes and hands to heaven, आसमान की जानब सिर्फ अपने हाथ और मुंह उठाकर नहीं, and bowing the knees, अपने घुटने टेक के. How? In prayer. कैसे? सिर्फ दुआ में. But by presenting him with golden obedience. अपने दिल की जो सोना है, चांदी है, जो सबसे अच्छी चीजें हैं वो खुदा को दे दें और वो आपका दिल है. To obey is better than sacrifice. वफादारी फरमाबरदारी करना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है. We hallow and sanctify God's name when we lift up his name in our praises. जब अपनी तारीफ के वसीला से खुदा की इबादत करते हैं, उसके नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं तो उसके नाम को पाकीज़गी को हम पाक ठहराते हैं. खुदावन का दिन हमारे लिए कैसा है? Praising God is hallowing his name. उसकी तारीफ करना उसके पाक नाम को पाक ठहराना है. अपने दिल की जो ज़रूरियात हैं उनको खुदा के सामने रखना. This is one of the highest and purest acts of faith. एक
ईमान के अंदर ये सबसे ऊंचा रुतबा है. In prayer we act like men. In praise we act like angels. जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के लोग, वो लोग हो जाते हैं जो पाक लोग हैं. हम फरिश्तों की मानद हो जाते हैं. Praise is the music of heaven. जो तारीफ है मेरे अजीजों, वो आसमान की इज्जत है. आसमान आसमान का वो म्यूजिक है, उसके साज है. Praise is heavenly. It's a music of heaven. उस पाक खुदा की जो सारी कायनात का मालिक और पालने वाला है. And a work fit for saint. ऐसा साज जो एक शख्स के लिए जो आसमानी है उसको खुदा तक रसाई देता है. Let the saints be joyful. जो आसमानी लोग हैं उनको खुशी मनाना है. Let the high praises of God be in their mouths. उनके मुंह के अंदर से खुदा की तारीफ नजर आए, इस पाक खुदा की. ज़बूर 149 उसकी 5वीं और 6वीं आयत में हम इस चीज को देखते हैं. We read this in Psalm 149 verse 5 and 6. As everyone has not skills to play on the viol or organ or something other things, we cannot play music, but we can sing. हम बाकी साज शायद ना बजा सकते हो, लेकिन हम गीत गा सकते हैं, अपने दिल से दुआ कर सकते हैं. I will praise the Lord with my whole heart. ज़बूर नवीस कहता है कि मैं अपने पूरे दिल से तेरी तारीफ करूंगा. He was exalting the name of the Lord. Hallowed be God's name when we sympathize with him. God's name, we see, is for us. We lay to heart his dishonor if we do not worship him. जब हम खुदा की इबादत करते हैं तो हम उसको इज्जत के काबिल समझे, उसका नाम ऊंचा रखें. How was Moses affected with God's dishonor? उसको देखे कि मूसा किस तरह उसने देखा. He broke the tables. हम देखते हैं कि उसने जो कुछ चीजें जो वो तोड़ दी. We grieve to see God's Sabbath being broken. और बातें हम कर सकते हैं खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए. खुदा पाक खुदा है. खुदा की बातों को समझें. आज की इन बातों की वसीला से जब हम खुदा के ईमान को देखते हैं, खुदा की उन बातों को समझते हैं, खुदा पाक खुदा है, उसकी इज्जत करना एक लाजम अमल है. We hallow God's name. We bring honor to his name only in Christ Jesus our Lord. There are so many things in the world that dishonor God's name. खुदा का नाम काफी जगहों पर लान तान किया जाता है. बाकी मज़ाहिब के लोग उसके नाम को लान तान करते हैं. वो जो उस पर यकीन नहीं करते उसके नाम को लान तान करते हैं. There's so many people in the world today dishonor God's name. They curse God. They take the name of God in vain. But not you, if you are listening to this voice today. अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, not you. क्या आज की सुबह मैं और आप खुदा के जलाल का कुछ हिस्सा देख सकते हैं? Can we today, this morning, see the glimpse of God's glory as Moses did in the rock? जैसे कि चट्टान में मूसा ने देखा. It would draw adoration and praises from us.
हमारे दिल की चट्टान से वो खुशियां, तारीफ निकाल सकता है। Could we see God face to face? क्या हम खुदा को आमने सामने खड़े होकर देख सकते हैं? As the angels in heaven, जैसे कि आसमानी मकाम के लोग, जो फरिश्ते हैं, वो करते हैं। Could we behold him sitting on his throne like a jasper stone? वो जो चट्टान पर बैठा है, वो जो तख्त पर बैठा है, क्या उसको हम चमकता हुआ सोने की तरह देख सकते हैं या पत्थर की मानद देख सकते हैं जो कीमती पत्थर है? यीशु अल मसीहा जो कोने के सिरे का पत्थर है, the cornerstone. We've got to see that, don't we, my friends? We pray, hallowed be thy name. हम दुआ करते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए. That is, let the name be honored and magnified by us. कि उसके नाम की इज्जत और तमजीद और तारीफ हमारे दिल से निकले. If we do not magnify his name, we contradict our own prayers. अगर हमारे दिल खुदावंद की आवाज को नहीं समझ सकते, हम उसके दुआ से दूर हैं, उसके प्यार से दूर हैं. To say, hallowed be thy name, and not to bring honor to God's name, is to take the name of God in vain. ये कहना कि मैं खुदा के नाम को पाक जानता हूं या जानती हूं, लेकिन उसके नाम को वो इज्जत ना देना, उसके नाम को बेफायदा लेना है. Let us not be those that dishonor the name of God. Let us be those that do honor the name of God as we focus on ourselves this morning. May the Lord continue to bless you all. Thank you very much. God bless you all.